Hi everyone, myself Divya Tamrakar. Today we are going to start a new chapter, chapter number 8, a treat for mosquitoes. Mosquito is a small type of insect. Their food is blood. They suck our blood by their special sponging part. It is like a sucking pipe which is already present in mosquitoes. They insert it in our skin and suck our blood. मॉस्किटोज़ का जो खाना होता है वो ब्लड होता है, वो ब्लड एज अ फूड इनटेक करते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट अ डिजीज़ which causes by mosquitoes. Can you guess the disease name? It's malaria. Malaria is happen by female Anopheles mosquito. So let's start the chapter. Blood test. Here, as you can see the pictures of some students, Jaskirat, Rajat, Nancy and Aarti. They all are talk with each other because Rajat is absent for many days. Rajat had been absent for many days. When he come back at his school, all his friends are asking that what happened. So let's start. Blood test. Rajat is back at school today. He had been absent for many days. How are you now? Asked Aarti. I am alright. Rajat replied softly. Then Jaskirat said, you must have played a lot of while you are at home. Rajat said, who wants to play when you have fever? On top of it, I have to take a bitter medicine. I even had a blood test. Jaskirat asked, a blood test? What? I have must been very painful. It must have been very painful. सो जब रजत स्कूल में वापस आया तो उसके फ्रेंड्स ने उसने पूछा कि तुम कैसे हो. रजत ने आंसर किया, आई एम ऑल राइट. रिमेंबर स्टूडेंट्स, इफ समवन आस्क यू दैट हाउ आर यू नाउ और हाउ आर यू, यू हैव टू गिव देम आंसर आई एम ऑल राइट और आई एम फाइन. सो जसकीरत ने उसे पूछा और उसे ये भी कहा कि तुम तो घर पे बहुत सारा खेले होगे क्योंकि तू इतने दिन से तो घर पे ही थे. तो रजत ने कहा कि कौन खेलना चाहेगा जब उसे इतना फीवर हो और ऊपर से इतनी कड़वी दवाई खानी पड़ती है, तो कौन खेलेगा ऐसे में. और मैंने तो ब्लड टेस्ट भी दिया. फिर जसकीरत ने कहा, ब्लड टेस्ट क्यों, ये तो बहुत पेनफुल होता है. देन रजत सेड, एक्चुअली व्हेन द निडल pricked my finger, it felt like an ant bite. They took 2 to 3 drops of blood and sent it for tasting. That's how we come to know I had malaria. But Nancy said, but you get malaria when a mosquito bite you. Rajat, yes, but we find out by the blood test. Jaskirat said, there are a lot of mosquitoes in my house these days, but I didn't get malaria. Nancy said, who says that every mosquito bite causes malaria? Malaria is spread only by the disease-carrying mosquitoes. Aarti, all mosquitoes look the same to me. Rajat, there must be some difference. Rajat ने कहा कि हाँ, थोड़ा सा दर्द होता है तब जब उसके निडल को उसके फिंगर पे उसने प्रिंक किया, मतलब चुभाया. और उन्होंने उसको, रजत को ऐसा फील हुआ जैसे सिर्फ एक छोटी सी चींटी ने उसको काटा. और ज़्यादा नहीं, उन्होंने सिर्फ 2-3 ड्रॉप्स ब्लड के निकाले और उसको टेस्ट करने के लिए भेज दिया. जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तब पता चला कि रजत को
मलेरिया है। सो नैन्सी ने कहा कि सिर्फ एक मच्छर के काटने से, मॉस्किटो मीन्स मच्छर, ओनली एक मॉस्किटो के बाइट से तुम्हें मलेरिया हो गया। रजत ने कहा हाँ, लेकिन ये सिर्फ ब्लड टेस्ट से ही पता चलता है। जसकीरत ने कहा मेरे घर पे तो बहुत सारे मच्छर होते हैं आजकल, बट मुझे तो अभी तक मलेरिया नहीं हुआ। सो नैन्सी ने कहा कि किसने कहा तुमसे कि सारे मच्छर के काटने से मलेरिया होता है? मलेरिया सिर्फ उस मच्छर के काटने से होता है जो उसके वायरस या बैक्टीरिया को अपने साथ लेकर आते हैं। आरती ने कहा पर सारे मच्छर तो एक जैसे ही दिखते हैं। ऑल मॉस्किटो लुक द सेम टू मी, मुझे तो सारे मॉस्किटोस एक जैसे दिखते हैं। बट रजत ने कहा कि नहीं, बहुत डिफरेंस होते हैं। सो हियर स्टूडेंट, देयर इज अ पिक्चर ऑफ टेकिंग द ब्लड ऑन द ग्लास साइड फॉर टेस्ट। आपने भी कभी देखा होगा कि ब्लड टेस्ट जब होता है तो एक पतली सी निडल को प्रिंक किया जाता है मिडिल फिंगर में, और ब्लड के 2 से 3 ड्रॉप्स एक ग्लास की स्लाइड पे लेते हैं, जिस तरीके से इसमें दिखा रहा है। ये देखिए, इट इज़ द स्लाइड ऑफ ग्लास एंड द डॉक्टर और कंपाउंडर आर जस्ट take 2 to 3 drops of blood in the slides. After they use the high definition of microscope to see the blood slide under the microscope, and this microscope make things look 1000 times bigger. छोटी सी चीज को वो 100 times bigger show करती है, and the details inside the blood can be seen clearly. There are some microscope which make things look even more bigger than this one. ये जो है, it is the instrument and that name is microscope. ये माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है लेबोरेटरी में मेडिकल इक्विपमेंट की तरह। ट्रीटमेंट के टाइम पे इसमें उस स्लाइड को रखा जाता है और सारे ब्लड में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो दिखाई दे जाती हैं, और इससे ही पता लगता है कि ब्लड में क्या है। सो हियर, नैन्सी, डिड दे टेक द ब्लड फ्रॉम द प्लेस वेयर द मॉस्किटो हैड बिटन यू? रजत, ऑफ कोर्स नॉट। हाउ डू आई नो व्हेन एंड वेयर द मॉस्किटो बाइट मी? नैन्सी, बस हाउ कुड दे फाइंड आउट दैट यू हैव मलेरिया? You had malaria by your blood test. Do you think they could see something in the blood? सो नैन्सी ने कहा कि क्या तुम्हारा ब्लड वहाँ से लिया गया जहाँ पे मॉस्किटो ने बाइट किया था? रजत ने कहा ओह ऑफ कोर्स नॉट। मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से मच्छर ने कहाँ पे बाइट किया उसे? सो नैन्सी सेड दैट हाउ कुड दे फाइंड आउट दैट यू हैड मलेरिया ओनली बाय द ब्लड टेस्ट? क्या उन्हें उस ब्लड में कुछ दिखाई दिया? सो स्टूडेंट्स, यस, ये माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्होंने ब्लड में वो वायरस बैक्टीरिया देखे जो कि मलेरिया के लिए ज़रूरी होते हैं। किसी भी को मलेरिया होने के लिए उसमें वो बैक्टीरिया होना ज़रूरी होता है। सो वो उस ब्लड टेस्ट में दिखाई दे देता है। सो हियर इज़ द ब्लड रिपोर्ट। ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ब्लड रिपोर्ट है, एंड द प्राइवेट क्लिनिक्स आर गिवन सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स ऑल्सो. यू कैन test your blood in the pathologies also. Okay, so it is a type of blood report which is released by the central government health scheme. Here they will mention the patient name, age, their gender, and also the date when we take her or his blood, and हाउ डिड दे डायग्नोज, जब पेशेंट उस वक्त जिस कंडीशन में आता है, जैसे कि रजत जब गया था तो उसे फीवर था विथ चिल्स एंड रिगर्स. सो उसके बाद जब उसका ब्लड टेस्ट हुआ तो यहाँ पर वो लिखाता है मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल. सो पैरासाइट इज ए टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स विच organism which we cannot see by our naked eyes. We have to use, and we only see the parasites by the microscopes. Microorganisms by the microscopes. वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो छोटे छोटे जर्म्स होते हैं या कीटाणु बोल सकते हैं,
इतने छोटे होते हैं कि उनको हम ऐसे ही अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. सो पैरासाइट इज़ ए टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो स्टूडेंट्स, योर क्वेश्चन इज दैट what type of parasite? Parasite is what is parasite? Parasite is a, you have to write down the answers in the comment section. What is parasite? Earlier I told you that what is parasite. Okay, so you have to write down the answer in the comment section. Here is the medicine for malaria. From early times, the dried and powdered bark of cinchona tree was used to make a medicine for malaria. Earlier, people used to boil the bark powder and strain the water which was given to patient. Now, tablets are made for this. जब पहले डॉक्टर्स कम होते थे, विलेज एरियाज़ में डॉक्टर्स बहुत लेट पहुंचते थे या उन तक पेशेंट का पहुंच पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता था, तब सिनकोना ट्री के जो बार्क होते हैं, बार्क मतलब छाल, उनको पाउडर के फॉर्म में बना लिया जाता था और एज लाइक टी, जैसे हम चाय को बॉईल करके छान के पीते हैं, वैसे ही सिनकोना बार्क को पाउडर बना के उसको गर्म किया जाता है विथ वाटर एंड फिर उसको स्ट्रेन करके दिया जाता है. बट आजकल उसकी टैबलेट्स आ गई है. So the next topic is anemia. What's that? Aarti said, I had to get a blood test done, but they took a syringe full of blood. The blood test showed that I had anemia. Rajat asked, what is that? Aarti told him, the doctor said that there is less hemoglobin or iron in the blood. The doctor gave some medicines to give me strength. He also said that I should eat jaggery, amla and more green leafy vegetables because that have iron. How can there be iron in our blood? Jaskirat said there was something about this in the newspaper in yesterday. Rajat laughing. So then you eat iron or what? आरती ने कहा कि तुम्हें पता है कि मेरा भी ब्लड टेस्ट हुआ था, लेकिन उन्होंने जैसे रजत का सिर्फ 2-3 ड्रॉप्स लिए थे वैसे नहीं, आरती की फुल ऑफ सिरिंज ली थी और उसके बाद पता चला था कि उसे एनीमिया है. सो रजत ने पूछा वो क्या होता है? आरती ने कहा एनीमिया वो होता है जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल जब कम हो जाता है, हमारी बॉडी में आयरन जब कम हो जाता है तब ये डिजीज़ आती है. सो डॉक्टर ने आरती को उसकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एनर्जी देने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए मेडिसिन दी और उसे कहा कि जैगरी, आंवला और ग्रीन वेजिटेबल्स वाले लीव्स वाले वेजिटेबल उसको खाने चाहिए. सो नैन्सी ने पूछा कि क्या हमारे ब्लड में आयरन है? आयरन मतलब लोहा. सो जसकीरत ने कहा कि कल इसके बारे में न्यूज़पेपर में कुछ आया था. सो रजत ने हंसते हुए कहा तो क्या तुम आयरन खाती हो? आरती ने कहा सिली, this was not the iron used to make these keys. I don't know exactly what it was. After I ate lots of vegetable and whatever the doctor had said, my hemoglobin went up. So students, हीमोग्लोबिन हमारे रेड ब्लड सेल्स या हमारे ब्लड में पाए जाने वाला वो एलिमेंट होता है जो कि हमें स्ट्रेंथ देता है, एनर्जी देता है. हमारी बॉडी में ब्लड जो फ्लो होता है पूरे बॉडी पार्ट में, उस फ्लो को कंटिन्यू और अच्छा रखने के लिए हीमोग्लोबिन का होना हमारी बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. नॉर्मल हीमोग्लोबिन का लेवल फीमेल में होता है 12 और मेल में होता है 15. अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल 10, 11, 12 तक है तो आपका लेवल बहुत अच्छा है. अगर बॉयज़ में वो लेवल 14, 15, 16 है तो वो लेवल बहुत अच्छा है और इससे कम होने पर हमें एनीमिया हो जाता है, जैसे कि आरती को हो गया था. इस वजह से यू हैव टू टेक ऑल द ग्रीन leafy vegetables. I know some of you are
don't like different types of vegetable like spinach, like the bitter gourd and different types of leafy vegetables. I know you don't like all these things, but you have to eat in a small quantity. Don't eat a lots of, don't eat a large quantity, don't take it in a large quantity because you don't like. So start from a little bit, थोड़े से खाना शुरू करेंगे तो वो हमारी बॉडी को बहुत इफ़ेक्ट करेगा, हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ होगी और हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे. सो डोंट ईट मच the junk foods like pizza, pasta and sandwich and whatever, Maggie. Don't noodles, don't think these things too much, don't eat these things too much. You can eat these things but only in a small amount. Okay, every week, once in a week. Okay, week में सिर्फ एक बार, once in a week you have to eat pizza, burger, noodles, Maggie, pasta and all the junk foods, but you have to take homemade foods daily. Okay, so let's see the anemia common in Delhi school. It is an article which is published in a newspaper that told about the Delhi school's condition where some students are affected by anemia. It is published on 17 November 2007. Thousands of children study in the Municipal Corporation School in Delhi suffer from anemia. This is affecting both their physical as well as mental health. Due to anemia, children do not grow well and their energy levels are low. This also affects their ability to study properly. Now health checkups are being done in the schools and health cards are being made for all the children. Anemic children are also being given iron tablets. ये एक आर्टिकल है जो 17 नवंबर 2007 को पब्लिश हुई थी, जिसमें ये बताया गया था कि दिल्ली के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि एनीमिया से सफ़र कर रहे थे. एनीमिया की वजह से उनकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट हो रहा था. फ़िज़िकल हेल्थ मीन्स वो खेल नहीं पा रहे थे, वो जल्दी दौड़ते थे तो जल्दी थक जाते थे, अच्छे से खेल कूद नहीं कर पा रहे थे. मेंटल हेल्थ मतलब वो कुछ भी चीज़ याद करते थे तो उससे उन्हें बहुत जल्दी नहीं हो पाता था. क्यों? क्योंकि वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड होममेड फूड नहीं खा रहे थे. इस वजह से उनका एनर्जी लेवल जो था वो डाउन हो गया था. उनका ध्यान भी स्टडी पे नहीं था. तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम थी. सो स्कूल ने उनका चेकअप करवाया, उनका हेल्थ कार्ड बनवाया और जिन चिल्ड्रंस को एनीमिया है उन्हें आयरन की टैबलेट दी. सो हियर द हाफ ऑफ द पार्ट of chapter number 8 is completed. In my next video I will complete the rest of the part of chapter 8 and I'll ask you a question: what is parasite? So you have to give the answers in the comment section, and if you if you watch the video, you have to press the like button and please subscribe my channel for new videos. Thanks for watching.